यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा वो देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम पास्टर राहुल गोस्वामी बुंदेलखंड इवेंजेलिकल चर्च से आपका अभिवादन करता है। आपको यीशु मसीह के नाम में हम नमस्कार कहते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और इस शाम हम आपके सन्मुख आज कवितामय स्तुति को लेकर आए हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको निश्चित रूप से आज की शाम इस समय में आशीषित करने जा रहा है। और यह कवितामय स्तुति निश्चित रूप से आपके लिए एक बड़ी आशीष का कारण ठहरेगी। आज की शाम आपके लिए हमारी इस कार्यक्रम में रोहन गोस्वामी के द्वारा गीतों की प्रस्तुति होगी और मैं आपके समक्ष उन कविताओं को लेकर आऊंगा जो परमेश्वर के प्रकाशन में होकर हमने स्वयं लिखी है और जिसके द्वारा प्रभु की महिमा का प्रगटीकरण होगा। और मैं बहुत देर ना करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा और रोहन गोस्वामी को मैं इनवाइट करता हूं कि वो परमेश्वर की महिमा में एक गीत प्रस्तुत करे जिसके द्वारा सारी बातों में प्रभु को महिमा मिले। वेलकम रोहन। Praise the Lord. Today I am going to sing two songs. What a friend we have in Jesus, along with Count Your Blessings. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trial and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Come but be the load of care. Precious still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do your friend despise, forsake you? Take it to the Lord in prayer. In his army take and shield you. You will find a solace there. Bless your Savior, thou hast promised. Thou will all our burdens bear. May we ever, Lord, be bringing all to thee in the earnest prayer. Soon in glory bright and clouded, there will be no need for prayer. Rapture, praise, and endless worship will be our sweet portion dear.
Second song, Count the Blessing. When upon love below you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessing, name them one by one, count your blessing, what the God has done. Count your blessing, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will keep singing as the days goes by. Count your blessing, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessing, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your many blessings, angel will attend, help and comfort give you to your journey's end. Count your blessing, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessing, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your blessing, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Thank you, praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद देते हैं रोहन के लिए एंड गॉड ब्लेस यू रोहन, वेरी नाइस सिंगिंग। और निश्चित रूप से परमेश्वर की महिमा में हमारा जवान बेटा इन दिनों में बढ़ रहा है और यह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बड़े आशीर्वाद का विषय है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि ऐसी संतान दी और परमेश्वर उसे अपनी महिमा के लिए इन दिनों में तैयार कर रहा है और आने वाले समय में हम रोहन में एक अच्छे सेवक को देखते हैं और निश्चित रूप से प्रभु की महिमा आगे भी होने पाएगी। और इसी के साथ ही अब मैं इस समय को जो कविता में स्तुति है इसको मैं आरंभ करने जा रहा हूं और एक स्तुति मैं कविता के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ चलना चाहता हूं। सो मेरा एक प्रयास रहता है कि जब हम हिंदी साहित्य के द्वारा परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और साहित्यिक रूप से परमेश्वर के दर्शन को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सो इसमें आप हमारे सहभागी बने और इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉरवर्ड करें, वॉच पार्टी बनाएं ताकि अन्य लोगों तक भी यह संदेश पहुंचे। और साथ ही पास्टर राहुल गोस्वामी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसे जरूर लाइक करें और साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल है सदा का आनंद, ताकि ये कविताएं, लेख, कहानियां आप तक पहुंचते रहे, उसे भी आप सब्सक्राइब करें, सदा का आनंद। सो इसी समय मैं परमेश्वर के इस कविता में स्तुति के साथ आरंभ करना चाहूंगा। हे उद्धारक, क्षमा दाता, स्वर्ग पथ प्रणेता, दुख भंजन तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। अंतहीन है स्नेह तेरा, प्रेमी पितृ महान, प्रिय यीशु तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। तारण हारे क्लेश नाशक, जय दाता अंधकार हंता, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। चरण वंदना करते, आशा तुम्ही से करते है अखंड विश्वास, जीवन के कष्ट तुम्ही तो हरते हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। परम पिता परमेश्वर तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। हे स्वर्ग पथ प्रणेता तेरी जय हो, तेरी जय हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में
मैं इस कविता के साथ, इस वंदना के साथ, इस तारतम्य में आपको आगे लेकर चलना चाहता हूं और आपके सामने गुलगुता की ओर जाते हुए यीशु मसीह के उस सलीबीकरण के समय जब यीशु प्रभु के कांधे पर वो क्रूस है जिसके ऊपर उसने अपने प्राण मेरे और आपके लिए दिए थे, उस विषय को आपके सामने इन पंक्तियों के माध्यम से रखने के लिए प्रयत्नशील हूं और इन पंक्तियों को निवेदित कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये आपको जरूर अच्छी लगेगी और आशीष देंगी। सुनिएगा। कांधे पर क्रूस लिए तमन्ना रखे मानव के छुटकारे की, कांधे पर क्रूस लिए तमन्ना रखे मानव के छुटकारे की, कलवरी की ओर यीशु जा रहा था। कांधे पर क्रूस लिए तमन्ना रखे मानव के छुटकारे की, कलवरी की ओर यीशु जा रहा था। बचाने मनुष्य को पापों से गुनाहों का बोझ स्वयं पर उठाया जा रहा था। बचाने मनुष्य को पापों से गुनाहों का बोझ स्वयं पर लाने जा रहा था। परमेश्वर से मिलाने को मनुष्य से, परमेश्वर को मिलाने को मनुष्य से ब्रह्मपुत्र मृत्यु को सहे जा रहा था, मृत्यु को सहे जा रहा था। देने को अमृत हमें सारा गरल खुद पिए जा रहा था। हमें अमृत देना चाहता था, हमें जीवन देना चाहता था, हमें प्राण डालना चाहता था, हमारी लाश को जिंदा करना चाहता था। इसलिए वचन की ओर से ये कविता की पंक्तियों को आप तक भेज रहा हूं, स्वीकार कीजिएगा। देने को अमृत हमें सारा गरल खुद पिए जा रहा था। बेच दिया था चांदी के सिक्कों में जिसको, बेच दिया था चांदी के सिक्कों में जिसको, बाद इतने पर भी उसी कमजर्फ को क्षमा का दान दिए जा रहा था, क्षमा का दान दिए जा रहा था। कांधे पर क्रूस लिए तमन्ना रखे मानव की छुटकारे की, कलवरी की ओर यीशु जा रहा था। मेरे प्रियो, आज इस दृश्य को देखिएगा अपने जीवन के अंदर कि आपके हिस्से की सजा पाने के लिए उस मसीह ने अपने कांधे पर क्रूस रख लिया था और आज वह आपको यह कहता है कि देखो जगत के अंत तक लाइट न होने के कारण हमने कृत्रिम लाइट का इंतजाम किया है और इलेक्ट्रिसिटी अचानक चली गई है, अंधेरा हो गया है। लेकिन फिर भी धन्यवाद हो मिसेस गोस्वामी का, बीमार है एवेंजलिस्ट गोस्वामी, तकलीफ में है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये प्रबंध किया और यहाँ पर लाइट जल सके, इसलिए उन्होंने एक बैटरी वाली लाइट यहाँ पर प्रबंध की है। प्रभु आशीष दे। और आगे हम इस कार्यक्रम में बढ़ रहे हैं और प्रार्थना है कि जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी आए ताकि और अच्छे से आप लोगों के साथ हम एक दूसरे को देख सके, उजाला मिल सके। अगली कविता के माध्यम से प्रभु को महिमा देने का प्रयत्न कर रहा हूं और बात रखना चाहता हूं कि यीशु प्रभु आपसे ये आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूं। डर मत देख, मैं तेरे साथ हूं। डर मत देख, मैं तेरे साथ हूं, कदम दो कदम नहीं। डर मत देख, मैं तेरे साथ हूं, कदम दो कदम नहीं, संपूर्ण जीवन में साथ हूं। ऐसा नहीं है कि प्रभु की उपस्थिति आज होगी तो कल हट जाएगी। अरे यीशु प्रभु तो अब जीवन में प्रवेश कर गए हैं, वे सदा आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आप अपने देह रूपी घर को चमके पोंछ कर स्वच्छ वातावरण बनाकर रखिएगा। यहां पर डर मत देख, मैं तेरे साथ हूं, कदम दो कदम नहीं, संपूर्ण जीवन बढ़ वचन प्रचार कर, आगे बढ़ वचन प्रचार कर, अदृश्य आत्मा रूप तेरे आसपास हूं। आगे प्रचार कर, अदृश्य आत्मा रूप तेरे आसपास हूं। जमाना ताने मारेगा, कोई उपहास उड़ाएगा, ताने मारेगा, कोई उपहास उड़ाएगा, कदापि घबराना नहीं। जमाना ताने मारेगा, कोई उपहास उड़ाएगा, कदापि घबराना नहीं। तेरी हिम्मत में तेरे साथ हूं। दोष कोई कितने क्यों ना लगाए, दोष कोई कितने क्यों ना लगाए, नफरतों के दौर कितने ना आए, सब छोड़कर क्यों ना चले जाए। दोष कोई कितने क्यों ना लगाए, नफरतों के दौर कितने ना आए, सब छोड़कर क्यों ना चले जाए। मैं शांति का राजकुमार, मैं शांति का राजकुमार तेरे साथ हूं। रिश्ते नामों की परवाह ना करना,
रिश्ते नातों की परवाह ना करना, आडंबर और दिखावे पर मुग्ध ना होना। रिश्ते नातों की परवाह ना करना, आडंबर और दिखावे पर मुग्ध ना होना, आगे बढ़ प्रेम फैला। प्रभु ये चाहता है कि स्प्रेड द लव, बिकॉज लव इज गॉड, गॉड इज लव। और जब परमेश्वर प्रेम है तो प्रेम प्रभाव आपके जीवन से निरंतर होना चाहिए। आगे बढ़ गिरते हुओं को गले लगा, आगे बढ़ प्रेम फैला, गिरते हुओं को गले लगा। हर गम हर उत्सव में मैं तेरे आसपास हूं, तेरे साथ हूं, मैं तेरे आसपास हूं। डर मत, मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्रियो, प्रभु हमें कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर है, वह हमारे साथ है, यह हमें विश्वास रखना होगा। एक बात एक बार मेरे जेहन में आई, मैं कौन हूं, क्या मेरी आइडेंटिटी है, क्या मेरी पहचान है। मैंने यीशु मसीह को अब ग्रहण कर लिया है, अब मैं कौन हूं, क्रिश्चियन हूं, ब्राह्मण हूं, क्या हूं, कौन हूं। एक जब मेरे सामने लगा तो मेरे कलम ने कागज पर कुछ पंक्तियों के द्वारा एक कविता की रचना की, और इसके द्वारा प्रभु की महिमा होती है। और इस बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इस पर डबल ट्रिपल लाइक की वर्षा आप जरूर निश्चित रूप से करेंगे, और यह आपकी ओर से मेरे लिए आशीर्वाद होगा, यह समर्थन होगा आपका इन पंक्तियों के लिए। मैं कौन हूं मुझे बताया यीशु ने, मैं कौन हूं मुझे बताया यीशु ने, खोया था, टूटा था, बिखरा था। मैं कौन हूं मुझे बताया यीशु ने, खोया था, टूटा था, बिखरा था। आदम के पाप का गुना व्यवस्था का दंड लिए मेरे ऊपर खड़ा था। आदम के पाप का गुना व्यवस्था का दंड लिए मेरे ऊपर खड़ा था गुनाह अजीम, था गुनाह अजीम, हुई पाक हुकूमत हुक्म की तौहीन, था गुनाह अजीम तौहीन, बागे अदन में जुर्म था ये संगीन। हुई पाक हुक्म की तौहीन, बागे अदन में इंसान पर मौत का कब्जा था, अब इंसान पर मौत का कब्जा। देख दुर्दशा पाप में पड़े मानव की, देख दुर्दशा पाप में पड़े मानव की, ईश्वर स्वयं वसुंधरा पर चला आया। देख दुर्दशा पाप में पड़े मानव की, ईश्वर स्वयं वसुंधरा पर हुए अवतरित। एक पुकार उठी यही उद्धारक है, एक पुकार उठी यही उद्धारक है। स्वर्गदूत की आवाज थी बड़ी शीरीन, स्वर्गदूत की आवाज थी बड़ी शीरीन, मिला आह्वान कि मैं चरवाहा हूं, मिला आह्वान कि मैं चरवाहा, भूखे होने की आहट मिली। का वचन पहुंचा तब लगा आया, मैं भूखा हूं, मुझे वचन की भूख है, मुझे वचन की प्यास है। और यहां को आप तक निवेदित करते हुए आपके सामने परमेश्वर के उस गहरे रहस्य को अपने जीवन के साथ जोड़ते हुए रख रहा हूं। प्रभु का अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए, पवित्र आत्मा का स्वागत करते हुए इस बात को कहना चाहता हूं। मिला आह्वान कि मैं चरवाहा हूं, उसी घड़ी भूखे होने की आहट मिली। मैं यीशु की भेड़, मेरे प्रभु से मुझे यह पहचान मिली, यह पहचान मिली। मैं यीशु की भेड़, मुझे मेरे प्रभु से यह पहचान मिली। तब मुझे आइडेंटिटी पता चली कि मैं कहीं बंधा हुआ था, कहीं मैं छूटा हुआ था, लेकिन जो शब्द उसका कानों में गुंजाया, प्रभु ने मेरे जीवन पर अपना अनुग्रह प्रकट कर दिया, प्रभु ने अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर दिया और यह बता दिया कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तेरा परमेश्वर यीशु हूं, मैं तेरा प्रिय पिता हूं। और परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये आनंद प्राप्त हो गया कि आज मैं मसीह होकर आपको मसीह कविताओं के साथ उस आनंद वर्षा में सम्मिलित करने के लिए बेचैन हूं, उत्सुक हूं। बेचैन नहीं बल्कि कहना चाहिए मैं उत्सुक हूं। आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत उत्साहित हूं इस बात के लिए कि आप मेरे साथ हैं। अगली बात ये बताना चाहूंगा, मसीह में आने के बाद आप जब प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, मसीह बन जाते हैं, तो अगला स्टेप जो आता है वो क्या है, उस विषय पर आपको
चिंता न पुरस्कार की अपेक्षा, क्योंकि जैसे ही आप मसीह में आते हैं तिरस्कार आरंभ हो जाता है, वहां वालों का और यहां वालों का भी। कहते हैं तुम हमारे नहीं रहे, और यहां वाले कहते हैं तुम हमारे हो कैसे सकते हो। अब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके आया है, भला हृदय भोला मन लेकर वह प्रभु के करीब आया है और तिरस्कार सामने है, तब यहां पर इस रचना के द्वारा ऐसे नौजवानों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं, ऐसे लोगों तक जो ये सोचते हैं कि हमारा तिरस्कार हो रहा है, तो वहां पर ये शब्द प्रेषित करता हूं, ऐसे लोगों को स्वीकार कीजिएगा। न तिरस्कार की चिंता, न पुरस्कार की अपेक्षा, न प्रतिकार का मन, बदला लेने की भी इच्छा नहीं है। न तिरस्कार की चिंता, न पुरस्कार की अपेक्षा, न प्रतिकार का मन, ईश रहा में करता सिर्फ यह जतन, मेरा प्रभु मुझसे महिमा पाए। ईश रहा में करता यह जतन, मेरा प्रभु मुझसे महिमा पाए। निष्दिन मुख से गुणगान करे, विश्व के हर कोने में राज्य मसीह का बनाए, विश्व के हर कोने में राज्य मसीह का बनाए। कोयले जैसी पाप की दुनिया में, कोयले जैसी पाप की दुनिया में खोजे वचन के भूखे प्यासों को, बदले जीवन उनका हीरे मोती सा बनाए। पाने खोने की बने नहीं अभागे से, पाने खोने की चिंता ना करिएगा। यह मत सोचिएगा अब हम मसीह में आ गए हैं और हमें आशीष ही मिलनी चाहिए, हमें समृद्धि मिलनी चाहिए, हमें सब कुछ हमारे मन का मिलना चाहिए। इन पंक्तियों के माध्यम से आपका उत्साह उन्नति की एक ज्योत जलाने के लिए प्रयत्नशील हूं। पाने खोने की चिंता में बने नहीं अभागे से, प्रेम से मसीह के कहीं वंचित न रह जाए। यदि इसी चक्कर में लगे रहे तो मसीह का वो गहरा प्यार जिसके लिए स्वर्ग में स्थापना है, जिसके लिए एक बड़ा चैन है, प्रभु की वो अनुग्रह की दृष्टि से वंचित न रह जाए। की चिंता में बने नहीं अभागे से, प्रेम से मसीह के कहीं वंचित न। ओ मसीह हो, आओ हाथ एक दूसरे का, आओ मसीह हो, थामे हाथ एक दूसरे का। आज चेन बना लेना है, आज अपने बगल में बैठे व्यक्ति का हाथ पकड़कर ये है। क्या बात आगे आ रही है? आओ मसीहो, थामे हाथ एक दूसरे का, बिना लाभ बिना हानि। आओ मसीहो, थामे हाथ एक दूसरे का, बिना लाभ बिन हानि। ज्योति सुसमाचार की जलाए, ज्योति सुसमाचार की जलाए। प्रभु यीशु मसीह का काम करते चलना है, न पुरस्कार की चिंता करना है, न तिरस्कार, न पुरस्कार की अपेक्षा रखना है, न तिरस्कार की चिंता करना है। आगे आपको एक बात, जब हम ब्लेस होते हैं, जब हम प्रभु में रहते हैं, प्रभु का आनंद बांटते हैं, तो निश्चित रूप से हम आशीषित भी होते हैं। और जब हम ब्लेस होते हैं, जब हम आशीष प्राप्त करते हैं, जब हमें प्रभु करता है, तो हम साधारण व्यक्ति नहीं रह जाते। और उस समय इन पंक्तियों को अपने पास रखिएगा, इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। आइए मैं आप तक इस कविता के माध्यम से आपको एक नए बात से परिचित कराना चाहता हूं, और आप बताइएगा, क्योंकि गलतियों दूसरे अध्याय के 20वें वचन में संत पौलुस, आगे कविता को सुनिए। मुझमें से मैं समाप्त हो जाएगा, ईशु रूप मोक्ष मार्ग प्राप्त हो जाएगा। मुझमें से मैं समाप्त हो जाएगा, ईशु रूप मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जब तक मेरा मैं जिंदा रहेगा, मृत तृष्णा में अज्ञानी जीव भटकता रहेगा। मृत तृष्णा में, ये मारीचिका को पाने के चक्कर में कि वो जा रहा है, इसे पाने की से लालसा, ये अपेक्षा, यही हमारे जीवन, मसीही जीवन का, आत्मिक जीवन के पतन का कारण बनता है। मुझमें से जब तक मेरा मैं जिंदा रहेगा, मृत तृष्णा में अज्ञानी जीव भटकता रहेगा, छोड़ कहीं ना पाएगा। इच्छाएं लिप्साएं अपेक्षाएं अनंत है, इच्छाएं लिप्साएं अपेक्षाएं
100% कोई नहीं पा पाएगा, चाहे जितना देखिए, इच्छाएं, लिप्साएं, अपेक्षाएं अनंत हैं, 100% कोई नहीं पा पाएगा। इसलिए जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त मानो, इसलिए जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त मानो। हरगिज लालच का पाप नहीं सताएगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस संसार से खुद को खाली करना है। कोई यज्ञ आहुतियां नहीं करने हैं, कोई बड़े मंत्र, कोई बड़े पाठ नहीं करने हैं। यहां पर वचन की जो अपेक्षा है, जो मेरे क्रूसित मसीह की अपेक्षा है, उसको आपके समक्ष रखता हूं। इसे स्वीकार कीजिएगा। यह आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयत्न है। कविता की पंक्तियों से यह सुसमाचार का प्रचार है और इसे स्वीकार कीजिएगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस संसार से खुद को खाली करना है। कर यह विश्वास यीशु ही है उद्धारक, कर यह विश्वास यीशु ही है उद्धारक। शांति पथ पर चलना है, तारणहार गले तुझे लगाएगा। कल का कोई भरोसा नहीं, कर आज ही पश्चाताप। ले प्रेम क्षमा ईमान का संकल्प, ले प्रेम क्षमा ईमान का संकल्प। निश्चय तू ईश्वर को पा जाएगा, निश्चय तू ईश्वर को पा जाएगा। मेरे प्रियो, ये बात बिल्कुल सही है। मैं जब तक नहीं हटाएंगे, जब तक मसीह हम में नहीं आएगा। यदि हम मसीह को अपने अंदर लाते हैं तो हमें अपने मैं की तिलांजलि देना होगी। हमें उन शोक के गीतों को छोड़ना होगा, तब हम उल्लास के राग सुना पाएंगे, जब हम वचन का गीत गा पाएंगे। आइए आगे आपको लेकर चलता हूं और एक और बड़ी बात आपसे बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों में, तकलीफों में, सारा विश्व इस समय परेशानी के दौर में है, मुश्किलात में है। और इन मुश्किलों में कविता की पंक्तियों के माध्यम से आपका उत्साह वर्धन करने का एक प्रयत्न है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप स्वीकार कीजिएगा। मुश्किलों में मुस्कुराएंगे, तकलीफों में गुनगुनाएंगे, मुश्किलों में मुस्कुराएंगे, तकलीफों में गुनगुनाएंगे। हर संभव प्रयास करेंगे, जमाने को वेदना नहीं बताएंगे। हम किसी संसार के व्यक्ति से ये नहीं कहेंगे कि हम परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, हमारे घर की किचन में राशन नहीं है, हमारे जेब में पैसा नहीं है। संसार के लोगों को ये नहीं बताना है। लेकिन इस कविता की पंक्तियों को आप तक निवेदित करते हुए आपको हिम्मत देने का ये मेरा प्रयत्न है। एक मसीह व्यक्ति के लिए ये प्रभु के ओर से उत्साहित भेज रहा हूं। मुश्किलों में मुस्कुराएंगे, तकलीफों में गुनगुनाएंगे, हर संभव प्रयास करेंगे, जमाने को वेदना नहीं बताएंगे। रोएंगे यीशु के सामने, रोएंगे। दर्द है, दर्द तो निकलेगा, चित्कार उठेगी। रोएंगे यीशु के सामने, प्रभु से कुछ ना छिपाएंगे। कहता है हमसे कलामे पाक मत करना मनुष्य, मत करना मनुष्य पर भरोसा। जानकर पीड़ा दुनियावी लोग करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ मजाक उड़ाएंगे, सिर्फ मजाक उड़ाएंगे। करेंगे कुछ नहीं, संसार के लोग सिर्फ मजाक उड़ाएंगे। इसलिए विश्वास को झुकने मत देना। मुसीबत तंगहाली में भी गाएंगे, मुश्किलों में मुस्कुराएंगे, तकलीफों में गुनगुनाएंगे, वेदना अपने यीशु को हम बताएंगे। आगे एक और इस रात्रि अब आपसे जब विदा लेने का समय आ रहा है और प्रोग्राम हमारे ये कविता में स्तुति प्रोग्राम अंतिम क्षणों में है, सो हम इस कार्यक्रम में जब आखिरी की ओर जा रहे हैं, कुछ पंक्तियां, कुछ और कविताओं के माध्यम से आपका ढाढ़स बढ़ाते हुए, आपका साहस बढ़ाते हुए ये प्रयत्न है। और ये मंगलवार की कविता में स्तुति करने का सिर्फ यही मकसद है कि हम लोगों के बीच में हिंदी साहित्य के माध्यम से परमेश्वर का दर्शन पहुंचाएं। इसमें हमारा बेटा हालांकि इंग्लिश में गाता है, लेकिन वो भी एक पार्ट है कि प्रभु की महिमा होती रहे, हर तरीके से हो। और इसमें हमारा मकसद है कि इन दिनों में कि जब कोरोना वायरस में लोग रो रहे हैं, तो हम क्यों ना लोगों को स्तुति आराधना में एक सांत्वना प्रदान करें और हिम्मत दें, साहस दें और वे भी करें, ताकि उस आनंद को हम महसूस करें हर पल और शैतान पराजित हो। आइए आगे चलो एक ख्वाब देखें, सुबह नई रोशनी लेकर आएगी। चलो एक ख्वाब देखें, सुबह नई रोशनी लेकर आएगी, सब नया होगा।
सब नया होगा, जिंदगी ना रुकी है ना आगे रुक पाएगी। चलो एक ख्वाब देखें, सुबह नई रोशनी लेकर आएगी, रुक पाएगी, मिलेगा आराम फिर खुशी आएगी, मिलेगा आराम फिर खुशी आएगी, प्रकृति का नियम है। मिलेगा आराम फिर खुशी आएगी, प्रकृति का नियम है। रात कितनी ही लंबी अंधेरी क्यों ना हो, प्रकृति का नियम है, रात कितनी लंबी अंधेरी क्यों ना हो, उजाले को रोक ना पाएगी, उजाले को रोक ना पाएगी। धैर्य और विश्वास को खोना मत, धैर्य और विश्वास को खोना मत, बस महसूस आसमान वाले को साथ हर वक्त करना, बस महसूस आसमान वाले को साथ हर वक्त करना। अब तक बीती है, आगे भी गुजर ही जाएगी। आगे एक और बात आपको जरूर बताना जरूरी है इस समय कि भाई ये तो सब ठीक है, अच्छी बात है कि आगे हम विश्वास रखे हुए हैं, संबल है हमारे पास, हम ये ईमान रखते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर हमें कलाम पाक के द्वारा स्पष्ट करता है, यिर्मयाह वचन के अनुसार कि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की है वे हानि की नहीं वरन लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। सो जब ये वचन हमें बता रहा है तो हम जान लेते हैं कि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए लाभ की है। सो डरो नहीं मत घबराओ, उससे बात मिलाओ, डरो नहीं मत घबराओ, उससे बात करो, आंखें मिलाओ, शैतान ही तो है, मौत थोड़ी ही है। डरो नहीं मत घबराओ, उससे बात करो, आंख मिलाओ, शैतान ही तो है, मौत तो नहीं। हिम्मत के साथ आगे बढ़ो, परमेश्वर से बल पाओ, यीशु को करो